Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So since this is my first video on this channel, I would like to take a moment to tell you about this channel in brief, okay? So basically I have created this channel to create content related to finance and investing in general, okay? And mainly I will be talking about investing through stock market, and I will also make videos about other types of investment strategies like through mutual funds and all that, okay? So if you are someone who wants to learn about the stock markets, or if you are someone who is already into stock markets but want to learn more and stay updated about what is happening in the market, okay, so you can subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get all the notifications, okay? So before starting with the video, I would like to talk about a few things. First of all, I would be talking in both Hindi and English, okay? So it will be a mix of Hindi and English so that maximum people can understand. And if you want that आपको किसी एक लैंग्वेज में चाहिए, लेट्स से आपको हिंदी में ही चाहिए या आपको इंग्लिश में ही चाहिए, तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स, ओके, एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट. इसके बाद अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट दिस टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है? सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस or any feedback, whether it is positive or negative, please feel free to make use of the comment section, okay? So I am also a beginner in this YouTube field, so I would like to take your suggestions on how I can improve the video quality, camera angle and all that, okay? The most important thing, whatever we'll talk about in this YouTube channel, okay, please don't consider this as any tip or any recommendation from my side, राइट? सो यहाँ पे जो भी हम लोग बात करेंगे मे बी स्टॉक्स के बारे में, तो दैट विल बी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई विल ट्राई टू प्रेजेंट माई व्यू देयर, ओके? एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ओके, दैट you have to do with your own due diligence and your own research, okay? So please make any investment decisions on your own risk and not just by watching my YouTube video, okay? So किसी भी तरह की ये टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है अगेन. एंड अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो यू नो देर आर मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स जो आपको दिन भर स्टॉक रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, और यू ऑल्सो हैव सो मेनी टीवी चैनल्स लाइक CNBC एंड ऑल दैट. वहाँ पे आप जस्ट टीवी ऑन करो एंड देयर विल बी एनालिस्ट हु विल बी गिविंग बाई द स्टॉक, सेल द स्टॉक, ऑल काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस. तो अगर आपको वैसी रेडीमेड टिप्स चाहिए तो देर आर अदर एवेन्यूज, बट हियर ऑल दीज वीडियोज़ विल बी प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड वो मेरा पर्सनल व्यू होगा. एंड अगर आप कुछ भी बाइंग या सेलिंग करते हो, ओके, सो यू हैव टू डू विद योर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड एट योर ओन रिस्क, ओके? सो दीज वर द फ्यू थिंग्स I wanted to highlight, and before proceeding further I have a small request, so just hit that subscribe button and also press the bell icon so that you get the notifications for all my upcoming videos, okay? So in this video I will talk about a simple but very useful strategy through which you can make money in the stock market, okay? And that is the cup strategy, cup breakout strategy. So अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है then you might know about this strategy, but even if you are beginner you will get a fair idea how to use this strategy. It's very simple, and इस strategy को use करके you can make good amount of money in the stock market in the long term, okay? So let's get started with this, right? So यहाँ पे एक चार्ट है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का. नाउ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, हाउ टू स्टडी दिस चार्ट एंड ऑल दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आई वुड गिव यू अ सजेशन कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स करो, ओके? नॉट फ्रॉम यूट्यूब बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मे बी यू कैन डू फ्रॉम यूडेमी और समवेयर, सो दैट यू लर्न द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ओके? बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे विच यू मे नॉट अंडरस्टैंड इफ़ यू are completely new to this, okay? I will try to explain each thing in very simple manner, but still I would suggest कि अगर आप बिल्कुल नए हैं and if you don't know about technical analysis at all, then मेरे videos तो आप देख ही सकते हो, but at the same time you should also do a proper structured course
where you will learn about all these basics. Okay, what is the candlestick pattern? Okay, what are these indicators? What is this RSI indicator? What is the significance of volume? तो ये सब आप सीख सकते हो. And if you want that I should make a mini course on technical analysis on this channel, then you can put comments. Okay, and अगर इस वीडियो पे I get more than 20 comments, तो I will make a separate playlist on the technical analysis. Okay, so it will be a kind of mini course. उसको आप फ्री में कर सकते हो obviously, and you will understand all these things, all these terminologies which we are going to use further. Okay, anyway, so let's get started. तो बेसिक मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू और आप फर्स्ट टाइम इस तरह का चार्ट देख रहे हो, सो बेसिकली दिस इज़ द कैंडल स्टिक चार्ट. ओके, और यहाँ पे आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, राइट, यू सी सम ऑफ द ग्रीन कैंडल्स एंड सम ऑफ द रेड कैंडल्स. तो सिंपली इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी दिस इज़ द ग्रीन कैंडल जहाँ पे मेरा माउस है. ओके, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि ओपनिंग प्राइस, दिस इज़ द ओपनिंग प्राइस. ओके, जो इसका ये बॉटम है ये ओपनिंग प्राइस है, और जो इसका क्लोजिंग है ये इसका क्लोजिंग प्राइस है. अपर बॉडी इज़ द क्लोजिंग प्राइस एंड लोअर बॉडी इज़ द ओपनिंग प्राइस. तो ग्रीन कैंडल का मतलब कि जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था, ओके, ये स्टॉक जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ. ओके, सो यू सी ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट, ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज. तो अगर मैं इस कैंडल पे जाऊँ, सो ओपनिंग प्राइस इसका क्या था 56.20, राइट, एंड इसके बाद क्लोजिंग प्राइस क्या है 74.50. इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस इज़ मोर देन द ओपनिंग प्राइस. ओके, सो दिस मीन्स दैट ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर दिन या वीक या मंथ ऊपर बंद हुआ. ओके, सो दिस इज़ अ बुलिश कैंडल. एंड ऊपर आपको ये विक दिखेगी, दिस शैडो, तो ये आपको बताता है व्हाट इज़ द हाई. सो इस शैडो का हाई अगर आप देखो, सो इट इज़ 82. सो इन अ नटशेल ये स्टॉक ओपन हुआ, ओके, 56 रुपीज़ पे. ओके, ऑब्वियसली दिस इज़ मंथली चार्ट, तो ये पूरी मंथली प्राइस का कंसोलिडेशन है. बट लेट मी गो टू डेली. ओके, डेली पे ज़्यादा क्लियर होगा. सो लेट्स टेक दिस कैंडल. तो ये कैंडल का आप देखो ओपनिंग क्या है 116. ओके, इस प्राइस पे ये ओपन हुआ. व्हाट इज़ द लो, आपको यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो मे बी एक छोटी सी विक दिखेगी. ओके, इट्स नॉट विजिबल बिकॉज लो इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द ओपनिंग. तो लो इसका क्या है 115.5, हाई 128.60, मतलब इसने हाई बनाया 128.60 का, और क्लोजिंग प्राइस, सो ये बॉडी है, राइट, जो आप ग्रीन में देख रहे हो ये बॉडी है, और ये ऊपर या नीचे जो आपको दिखता है दैट इज़ द शैडो और द विक. ओके, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया 126. ठीक है, तो ये बेसिकली हमको बताता है कि ये स्टॉक का ट्रेंड क्या था, मतलब वेदर इट वाज इन बुलिश ट्रेंड और इन बेरिश ट्रेंड. ठीक है, बुलिश का मतलब सिंपली कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो दैट इज़ इन बुलिश ट्रेंड, अगर नीचे जा रहा है तो दैट इज़ इन बेरिश ट्रेंड. सिमिलरली कैंडल्स के लिए भी यही है कि ग्रीन कैंडल इज़ बुलिश कैंडल एंड रेड कैंडल इज़ बेरिश कैंडल. तो रेड कैंडल का क्या मतलब है कि ओपनिंग प्राइस इज़ मोर देन द क्लोजिंग प्राइस, मतलब ये ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, राइट. इसका मतलब इफेक्टिवली थ्रू आउट द डे ये प्राइस नीचे गया. ओके, सो दिस सिग्निफाइज अ बेरिश कैंडल. और यहाँ पे आपको दिखेगा वॉल्यूम. ओके, अगेन ग्रीन वॉल्यूम सिग्निफाइज द बाइंग वॉल्यूम, एंड जो रेड में दिख रहा है दैट सिग्निफाइज द सेलिंग वॉल्यूम. ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है. देन यहाँ पे एक इंडिकेटर है RSI. सो RSI इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर. सो दिस इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर जो बताता है कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक. नाउ नॉर्मली यहाँ पे दो लेवल्स मैंने लगा रखे हैं 60 एंड 40. ओके, नाउ नॉर्मली पीपल यूज़ 70-30 या 80-20 भी यूज़ करते हैं. इट्स अप टू योर चॉइस, बट इफ़ यू आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड सजेस्ट दैट यू गो विद दिस 60-40 अप्रोच. तो एक थंब ऑफ रूल ये है कि इफ़ द RSI इज़ बिलो 40, ओके, दैट मीन्स इट इज़ इन डाउन ट्रेंड. वहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करना है, ओके, या शॉर्ट करना है. एंड अगर ये RSI 60 के ऊपर है
दैट मीन्स द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और अगर 40 से 60 के बीच में है तो दैट मीन्स इट इज़ इन साइडवेज। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है आपको होल्ड करना है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। सो 40 से 60 के बीच में सिग्निफाइज दैट स्टॉक इज साइडवेज। जैसे आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखो, इफ़ यू कैन सी माई माउस कर्सर, यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक जो है साइडवेज था। ओके, थोड़ा सा नीचे गया देन थोड़ा सा ऊपर आया, बट इफेक्टिवली ये सेम प्राइस पे ही था। और यहाँ से यहाँ अगर आप RSI देखो तो दैट इज़ बिटवीन 40 एंड 60। ओके, ये 60 ये 40 से 60 के बीच में। सो दिस इज़ द मोमेंटम इंडिकेटर। ओके, तो ये एक बेसिक हो गया। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आई हैव गिवन अ बेसिक आइडिया। ये आपके मूविंग एवरेजेस हैं जैसा आप देख सकते हो। ओके, सो जो ये वाली लाइन है राइट, दैट इज़ द 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, इसके बाद ये वाली लाइन है दैट इज़ 50 EMA, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसके नीचे वाली जो लाइन है दैट इज़ 100 EMA। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, 20 EMA सिंपली मीन्स दैट 20 डेज के प्राइस का एवरेज। ओके, तो दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, एंड देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट, बट मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि 20 डेज का मूविंग एवरेज। ओके, सिमिलरली ये जो इसके नीचे वाली लाइन है दैट इज सिग्निफाइड बाय दिस कलर। ओके, समथिंग पर्पल और समथिंग, तो दैट इज़ 50 डेज का मूविंग एवरेज। और इसके नीचे वाली जो लाइन है दैट इज़ 100 डेज का मूविंग एवरेज। तो 100 डेज का मूविंग एवरेज मतलब इस स्टॉक के 100 डेज का प्राइस लिया गया, उसको एवरेज करके जो आता है दैट प्राइस इज़ द 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ओके, तो ये हमारे बेसिक इंडिकेटर्स और बेसिक टूल्स हो गए जो हम इस चार्ट पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये मैंने बेसिक बता दिया। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द कप स्ट्रेटजी एंड हाउ यू कैन यूज़ दैट। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू सी दिस पैटर्न। ओके, सो इस स्टॉक में अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक यू सी दिस पैटर्न। ओके, ये पैटर्न आप दिमाग में बिठा लो। सो दिस इज़ द कप पैटर्न, कप एंड हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे एक आपको हैंडल दिखेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट। ओके, इवन इफ यू डोंट कंसिडर दिस हैंडल, जस्ट कंसिडर दिस यू पैटर्न, यू शेप्ड। तो यहाँ पे ये प्राइस था। ओके, फिर उसने ये नीचे आया, दिस इज़ द कंसोलिडेशन फेज और यू कैन से द एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसके बाद अगेन यू शेप बना के अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगेन ये जिस लेवल पे था सेम इसी लेवल पे आया एंड दिस इज़ द ब्रेकआउट। सो ये जो लेवल है इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पॉइंट। और ये स्टॉक जब इसके बाद ऊपर जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के साथ आपको एक चीज़ देखनी है कि देयर शुड बी हाई वॉल्यूम, मतलब बाइंग वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, एंड जितना हाई वॉल्यूम होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो अब हम इसी को अप्लाई करते हैं इस चार्ट पे। सो दिस इज़ अ चार्ट ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, ये एक स्टॉक है। ओके, सो ये कंपनी बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह बनाती है। तो इसका मैंने मंथली चार्ट लगाया है। ओके, नाउ देयर आर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स जहाँ पे आप देख सकते हो, डेली, मंथली, वीकली। सपोज यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आप मंथली और वीकली देख सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है मतलब 2 से 3 महीने के लिए तो वीकली और डेली देख सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, जैसे आप डेली का ट्रेड करते हो, देन इवन 30 मिनट्स 15 मिनट्स चार्ट आप देख सकते हो। ओके, तो ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मे बी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टाइम फ्रेम बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो हम कप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन मंथली एंड वीकली चार्ट। ओके, डेली पे भी आपको ऐसे कप दिखेगा बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेनली यहाँ पे हम मंथली की बात करेंगे और थोड़ा बहुत वीकली पे भी कुछ चार्ट्स देखेंगे। बट मंथली पे अगर आपको ऐसा कप दिखता है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा। ओके, सो 2008 में इसने इस लेवल को टच किया था। ओके, सो दिस इज द रेजोल्यूशन पॉइंट। लेट मी राइट दिस डाउन। ये रेजोल्यूशन पॉइंट है, ठीक है, 84.30।
ठीक है। इसके बाद आप देखो, इससे कंपेयर करो। ओके, सो यू शेप ऐसे कब बनेगा, तो यहाँ पे भी आपने देखा, इसके बाद ये कैसा यू शेप थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में था, एंड अगेन 2023 में अगेन इट टच द सेम लेवल। ओके, ये आप देख सकते हो कि मई 2023 का चार्ट है, एंड मई 2023 में इसने इस लेवल को टच किया। मतलब ये कितने साल का ब्रेकआउट है, 2008 के बाद 2023 मीन्स 15 ईयर्स का ब्रेकआउट। तो 15 साल के बाद इस स्टॉक ने अगेन इस प्राइस को टच किया और उसके बाद ये ऊपर निकल गया। सी द रिटर्न्स। सो बेसिकली 15 ईयर्स में अगर इसका आप नेट रिटर्न देखो तो इट इज़ ज़ीरो। ओके, यहाँ भी इसने 84 के लेवल को टच किया था, अगेन सेम 84 के लेवल पे आया, बट उसके बाद आप देखो आफ्टर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 4 महीने में इट हैज़ गिवन अबाउट 100% रिटर्न। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा। ओके, सो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 171.75। तो इस कप स्ट्रेटेजी के पीछे आपको सिंपल साइकोलॉजी समझनी है। ओके, तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, बट इसके पीछे सिंपल साइकोलॉजी ये है कि क्यों इस स्टॉक ने 15 साल बाद इस लेवल को ब्रेक किया। इसके पहले 2008 से लेके 2023 तक, ओके, इट नेवर टच दिस प्राइस एंड सडनली इट ब्रेक्स आउट अबव दिस प्राइस। सो दिस मीन्स कि देर इज समथिंग गुड हैपनिंग इन द कंपनी। ओके, कुछ तो कंपनी में अच्छा हो रहा है जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। दैट्स वाई द स्टॉक इज अगेन टचिंग द सेम प्राइस। ठीक है, तो आपको चार्ट पे कैसे इसको पकड़ना है। ओके, सो फर्स्ट ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, बिकॉज कई बार कैसा होता है कि एक आपको कैंडल दिखेगी, ओके, जो इस रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर बनेगी, ग्रीन कैंडल, एंड देन अगेन वो नीचे आ जाएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ब्रेकआउट। अगर इसने ये सस्टेन किया फॉर 2 और 3 कैंडल्स, देन हम बोलते हैं कि दिस इज अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट, नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट। सेकेंड, आपको वॉल्यूम देखना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे इफ़ यू सी ब्रेकआउट पे देयर शुड बी हाई वॉल्यूम। तो जहाँ भी ब्रेकआउट होगा यू विल सी वॉल्यूम। ओके, इसके पहले जब ये कंसोलिडेशन फेज में था तो यू सी वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ खास लिक्विडिटी नहीं थी, बट जब इसने ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे तो यू सी द वॉल्यूम। ओके, दिस 2 बार्स। ओके, सो ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग, सो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो दिस यू हैव टू सी। और उसके बाद RSI भी आप देख सकते हो, RSI इज ऑल्सो अबव 60, राइट, एंड इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड्स है। ओके, सो RSI अबव 60 मीन्स बुलिश। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंडिकेटर्स यू कैन वेरीफाई कि ये ब्रेकआउट जो है वो कितना पॉजिटिव है। ओके, मतलब आपको एक कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ दिस विल गिव मी डिसेंट रिटर्न्स। ओके, और सिर्फ अगर आप ये देखोगे कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आई हैव 50% कन्विक्शन लेट से, बट अगर मैंने वॉल्यूम भी देखा, हाई वॉल्यूम है, तो मेरा कन्विक्शन बढ़ गया, 70% कन्विक्शन हो गया। फिर मैंने RSI देखा, RSI भी 60 के ऊपर है, कन्विक्शन और बढ़ गया, 80-85% हो गया। अब आपको जैसे 2 स्टॉक्स में चूज़ करना है, दोनों में ब्रेकआउट है। ओके, दोनों में वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, बट एक में RSI 60 के ऊपर है, एक में RSI 60 के नीचे है, या इवन 40 के नीचे है, तो आप कौन सा स्टॉक चूज़ करोगे? ऑब्वियसली जहाँ पे RSI 60 के ऊपर है। तो ऑल दीज इंडिकेटर्स एंड टूल्स विल हेल्प यू इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, अब आपको बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करनी है, तो ये रेजोल्यूशन पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। नाउ इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर तो आप इमिडिएटली ब्रेकआउट पे ही बाई कर सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, ओके, तो आप इस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे बाई कर सकते हो। ओके, एंड देन यू हैव टू यूज़ द स्टॉप लॉस। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस मतलब कि यू हैव टू डिसाइड अ प्राइस जहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस दैट यू कैन यूज़। मतलब 2 तरीके से आप स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हो। आइदर आप अपने दिमाग में फिट कर लो, ओके, कि ये प्राइस है, इस प्राइस के नीचे गया तो मुझे एग्जिट कर देना है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द स्टॉक प्राइस एवरी डे, हर दिन आपको उसका मूवमेंट ट्रैक करना पड़ेगा। ओके, द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज दैट यू पुट दैट स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नाउअडेज यू हैव दिस फैसिलिटी ऑफ पुटिंग द स्टॉप लॉस। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग Zerodha,
तो वहाँ पे आपको एक GTT ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, एंड वहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। सो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये रेजोल्यूशन पॉइंट के 2% नीचे आप ले सकते हो, ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये जो प्रीवियस कैंडल है, दिस इज़ द ब्रेकआउट, तो ये जो लास्ट कैंडल है इसका लो क्या है, 68 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज़ टू पुट दैट स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, बिकॉज एक बार आपने सिस्टम में डाल दिया तो दैट विल बी अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग, ओके। सो आप सिंपली वहाँ पे जाके, सपोज यू आर यूजिंग ज़ेरोधा, तो आप एक GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आप सेलिंग प्राइस, ओके, एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, तो आप ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो कि हाँ ये ट्रिगर प्राइस है, और उसके 1 या 2 पॉइंट नीचे आप सेलिंग प्राइस रख सकते हो, ओके। सो स्टॉप लॉस सिंपली मीन्स कि अगर वो प्राइस इसके नीचे गया, ओके, देन आपकी पोजीशन इमिडिएटली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब अगर आपने बाई किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और आपका रिवॉर्ड क्या है। तो लेट्स से मैंने रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर बाई किया इस कैंडल पे, ओके, 97, ओके, 97 या 98, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, इस कैंडल का लो 70 रुपीज़, तो करीब करीब 27 या 28 रुपये का रिस्क है। एंड व्हाट इज़ द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब टारगेट, तो कितना टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो जो कप स्ट्रैटेजी का जो मिनिमम टारगेट होता है, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द कप। सो डेप्थ ऑफ द कप का क्या मतलब हुआ, आपको ये यू शेप दिख रहा है, तो ये जो है दिस इज़ द डेप्थ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज़ द डेप्थ। आपको देखना है ये लो, ओके, सो दिस इज़ द डेप्थ, मतलब ये आपका लो था, राइट, 4 रुपीज़, और ये जो प्राइस है, जो रेजोल्यूशन पॉइंट है 84, इसका मतलब करीब ये 80 पॉइंट्स की डेप्थ है यहाँ पे, राइट। तो आपका जो टारगेट होगा दैट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस कप, तो टारगेट भी कितना होगा, 80 पॉइंट्स अबव दिस, मतलब 160। एंड यू सी सिर्फ 4 महीने में, ओके, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 months दिस हैज़ क्रॉस दिस टारगेट ऑफ 160, ओके, एंड ऑलरेडी ये 171 पे ट्रेड कर रहा है, तो रेजोल्यूशन पॉइंट के कितना ऊपर है ये, मोर देन 100%, ओके। सो सी दिस इज़ द पावर ऑफ दिस कप पैटर्न ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट होगा, ओके, एंड ऑल द थिंग्स आर इन आवर फेवर, कि हाई वॉल्यूम भी है, RSI भी अच्छा है, 60 के ऊपर है, एंड इट इज़ इन अप ट्रेंड, तो 80 to 85% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट द टारगेट इन 6 to 7 months, ठीक है। अब इस प्राइस को ब्रेक करने में इसने 15 साल लगाए, बट यू सी जस्ट 4 months में यू आर गेटिंग मोर देन 100% रिटर्न्स। सो इफ़ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस, ठीक है, अगर आप साल में 2-3 कप भी ढूंढ लेते हो इस तरह के, तो यू कैन अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस सिंपल स्ट्रैटेजी, ओके। नाउ एक और चार्ट पे चलते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके। सो मैंने आपको ये भी बता दिया एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो, कि जैसे जैसे ऊपर जाए प्राइस आप अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर ऊपर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मंथली चार्ट है, और यहाँ पे आप देखो अगेन ये कप बन रहा है, ठीक है, यू शेप, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 150 के ऊपर। अगेन आप देखो कि कितने साल का कप था, 2010 में इसने ये प्राइस टच किया था, ओके। उसके बाद से ये इस तरह के पैटर्न बना रहा था, ओके, मतलब साइडवेज बोल सकते हो आप, एंड इफेक्टिवली ये एक यू शेप है, राइट। और इसके बाद 2023 में इसने ब्रेकआउट दिया अगेन सेम लेवल पे, सो दिस इज़ द रेजोल्यूशन पॉइंट 153, एंड यू सी अभी इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 252, राइट, 252 इज़ द क्लोजिंग प्राइस। सो अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कप ब्रेकआउट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कप,
ज़्यादा टाइम फ्रेम होगा, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 12 साल 13 साल का कप ब्रेकआउट दिख रहा है, एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो ब्रेकआउट के टाइम, सी द वॉल्यूम, ओके। सो डिसेंट वॉल्यूम है यहाँ पे, RSI भी 60 के ऊपर है फर्स्ट थिंग, एंड द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, ठीक है। कई बार होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट RSI का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि कभी भी मार्केट टर्न मार सकता है, या अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक कभी भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। नाउ इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि लेट्स से हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ड्राइविंग ऑन द रोड, और लेट्स से हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर हमें गाड़ी को रोकना है, ओके, या अगर हमें यू टर्न मारना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पीड को कम करेंगे, राइट। तो अगर यू टर्न मारना है तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करेंगे, ओके, एक्सेलरेटर छोड़ेंगे, तो स्पीड कम करेंगे इफेक्टिवली। तो अगर स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब गाड़ी अभी भी आगे जा रही है बट स्पीड कम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि या तो गाड़ी रुकने वाली है या यू टर्न मारने वाली है, ठीक है। तो सेम एनालॉजी आप यहाँ स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, दैट इज़ गुड, बट RSI नीचे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, RSI इंडिकेट्स द मोमेंटम या स्पीड, तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर तो जा रहा है बट उसकी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब या तो वो कहीं ना कहीं जाके उसका अप ट्रेंड रुकने वाला है, या तो वो यू टर्न मारने वाला है, मतलब रिवर्सल होने वाला है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, जब स्टॉक प्राइस का डायरेक्शन और RSI का डायरेक्शन रिवर्स हो तो दैट इंडिकेट्स अ रिवर्सल, उसको हम RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं, एंड मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके। बट यहाँ पे आप देखो कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक आफ्टर दिस ब्रेकआउट, एंड सी द RSI बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप में इट इज़ गोइंग अप, सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज अ बुलिश ट्रेंड इन द स्टॉक। तो हमने ब्रेकआउट देखा, हाई वॉल्यूम देखा, और RSI ऊपर जा रहा है, सो अगेन दिस इज़ अ गुड साइन। और जो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन 50% था, आफ्टर सीइंग द वॉल्यूम एंड द RSI इट हैज़ गॉन टू 80-85%, ठीक है। और इसके बाद आप देख लो कि कितना रिटर्न्स 153 से लेके अभी 250, मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है, 100 रुपीज़ का रिटर्न आपको सीधे सीधे मिलता है जस्ट इन 4 मंथ्स, मतलब कितना परसेंट रिटर्न हो गया, आई थिंक 66% रिटर्न इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका रेजोल्यूशन पॉइंट है, ओके। अगेन एंट्री कहाँ पे करना है, या तो आप यहाँ पे कर सकते हो इमीडिएटली जब ब्रेकआउट हुआ, और यू कैन बाई एट दिस लेवल, जो ये कैंडल बनी है इसका जो हाई है, ओके। और जो पिछली कैंडल है इसका लो, ये आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, या रेजोल्यूशन पॉइंट के नीचे 2%। सो इतना आपका रिस्क है, एंड सी द रिवॉर्ड। तो अगेन इसकी हम डेप्थ देखें कितनी है, सो इसका लो जो है, जो कप है यू शेप्ड कप, इसका लो था 40, एंड ये जो प्राइस है रेजोल्यूशन पॉइंट ये है 152, तो इसका मतलब इसकी जो डेप्थ हो गई कितनी हो गई 112, तो टारगेट भी अब 112 तक एक्सपेक्टेड है, मतलब 152 के ऊपर कितना हो गया, अराउंड 264-265, ओके। तो ऑलमोस्ट वो टारगेट आ गया है, इवन ये 300 समथिंग तक गया ऊपर, 316 तक, बट यहाँ पे एक अगेन दिस इज़ कॉल्ड अ डोजी कैंडल, और यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन है कि थोड़ा ये स्टॉक नीचे आ सकता है, ओके। बट यू सी अगर यहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, एक ये डोजी कैंडल बनने के बाद आप सेल कर रहे हो, तो स्टिल यू आर गेटिंग 66% रिटर्न इन जस्ट 4 months। सो वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी बट वेरी पावरफुल इफ़ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस, ठीक है। नाउ आई विल शो यू माई ट्रेड्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोल दिया कि ये थियरी है, बट आई वॉन्ट टू शो यू द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ओके, कि आई हैव ऑल्सो मेड प्रॉफिट्स यूजिंग दिस, ठीक है। तो आई विल शो यू माई ट्रेड बुक जस्ट टू शो यू द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, कि दिस स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क्स, एंड इफ़ आई हैव कन्विक्शन इन समथिंग देन ओनली आई विल मेक अ वीडियो। ऐसा नहीं है कि सिंपली कुछ भी ज्ञान देने के लिए आई विल मेक एनी वीडियो लाइक मेनी अदर यूट्यूबर्स डू, बट आई विल ओनली टॉक अबाउट दो स्ट्रैटेजीज विच हैव पर्सनली बेनिफिटेड मी। तो मैं आपको अपने ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, ओके। सो आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स एंड PFC in last 4 months,
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे बाई किया था, कहाँ पे सेल किया, और what strategy I have used for entry and exit, because that is most important. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम यूजिंग Zerodha, ओके, फॉर माई ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड बुक ओपन की है, एंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके टिल डेट. तो यहाँ पे मैं आपको अगर पहले PFC का दिखाऊं, ओके, बाइंग और सेलिंग, मतलब किस प्राइस पे मैंने बाई किया और कहाँ पे सेल किया. तो 18 शेयर्स मैंने लिए 192 पे. अगर हम इस स्टॉक पे वापस जाएं, ओके, तो इस चार्ट पे देखें 192. मैंने इमिडिएटली ब्रेकआउट पे नहीं लिया, थोड़ा ऊपर लिया, ओके, थोड़ा मुझे लेट हो गया लेने में. 192 मतलब इस लेवल पे मैंने लिया, ओके, एंड यहाँ पे मैंने ओनली 18 शेयर्स लिए, ओके. अब दिस इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, कि जब भी आपको कोई भी ट्रेड लेना है, ठीक है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले यू शुड ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ओके. दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग द वाटर्स. मतलब आप पहले टेस्ट कर रहे हो कि वेदर माई कन्विक्शन इज़ करेक्ट और नॉट. अगर आपको लेट से 10,000 रुपये लगाने हैं इसमें, ठीक है, तो मे बी आप कितने शेयर्स, आई थिंक मे बी 50 शेयर्स ले सकते थे इस प्राइस पे, ओके. बट स्टार्टिंग में आपको सारी कैपिटल ऐसे इन्वेस्ट नहीं करनी है. स्टार्टिंग में मे बी यू कैन टेक 5 शेयर्स और 10 शेयर्स, और उसके बाद आप देखो कि वेदर योर डिसीजन इज़ राइट और नॉट, ओके. अगर वो स्टॉक नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओके, सो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा. बट अगर आपका डिसीजन सही होता है, एंड इफ द स्टॉक स्टार्ट्स गोइंग इन द अप ट्रेंड और इन वट एवर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने पैसा लगाया है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू कैन पुट मोर मनी इन टू दैट, ठीक है. उसको बोलते हैं पिरामिडिंग, ओके. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग उल्टा करते हैं, ओके. सो व्हाट पीपल डू इज़ दैट दे डू एवरेजिंग, कि इस प्राइस पे लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, तो उनको लगता है कि बहुत ही सस्ता हो गया, ओके, इट हैज़ गॉन चीप, तो सस्ता लेना इज़ गुड, तो वो और बाई करते हैं. फिर और नीचे जाता है, फिर वो और पैसा लगाते हैं, ओके. सो दिस इज़ कॉल्ड एवरेजिंग. बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए वैसे वैसे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है. तो लेट से मैंने इस प्राइस पे बाई किया, अभी किस प्राइस पे बाई किया, समथिंग अराउंड 192. इसके बाद मैं देखूंगा इसको कि ये मेरे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं. मैंने सोचा ये अप ट्रेंड में जाएगा, तो वेदर इट इज़ गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, विच मीन्स माई डिसीजन इज़ करेक्ट, तो फिर मे बी थोड़ा ऊपर जाने पे अगेन आई विल टेक सम मोर शेयर्स. फिर अगर ये और ऊपर जाएगा तो आई विल टेक सम मोर शेयर्स, ओके. सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड पिरामिडिंग, कि आप हर लेट से 10% 12% ऊपर जाने पे आप उस स्टॉक को खरीद रहे हो, ठीक है, आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो. तो यहाँ मैंने ओनली 18 शेयर्स खरीदे 192 के प्राइस पे, राइट. अगेन यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी, द कप ब्रेकआउट, ठीक है. इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ, राइट, सो यहाँ पे आप देखोगे PFC का अगेन कहाँ गया PFC, ओके, सेकेंड पेज, राइट. यहाँ पे मैंने PFC अगेन बाई किया. नाउ 3 + 67 70 शेयर्स बाई किए 222 के प्राइस पे, ओके. सो ये एक्चुअली अलग अलग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, दैट्स वाई यू आर सीइंग इन दिस 2 सेपरेट ट्रेड्स. बट ये 70 शेयर्स 222 के प्राइस पे बाई किए, ठीक है. तो 192 पे पहले 18 शेयर्स बाई किया. उसके बाद आई सॉ दैट दिस ब्रेकआउट इज़ लेजिटिमेट, ओके, ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है. तो अगेन मैंने 70 शेयर्स बाई किए 222 रुपीज़ पे, ओके. एंड अगेन 254 पे मैंने फिर एक लॉट और बाई किया. एक लॉट मतलब नॉट लॉट एग्जैक्टली 100 शेयर्स बाई किए, ओके, 254 के प्राइस पे, ठीक है. तो यू सी हाउ आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ द पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी. और फिर मैंने यहाँ पे सेल किया, जितने भी शेयर्स थे मैंने सेल कर दिए, ओके. सो 95 शेयर्स 262 के अराउंड, और अगेन 95 शेयर्स मैंने 277 के अराउंड सेल कर दिए. नाउ अगेन उसका रीज़न था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हाई रेड वॉल्यूम है, राइट. तो रेड बार का क्या मतलब है कि दिस इंडिकेट्स हाई सेलिंग प्रेशर. और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल भी दिख रही है, ओके. नाउ डोजी क्या होती है, सो
ये बॉडी है, ओके, और ये इसकी विक है. सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल बॉडी एंड अ लार्ज विक, तो इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल. और ये जो कैंडल है ये डोजी प्लस शूटिंग स्टार का कॉम्बिनेशन है. नाउ शूटिंग स्टार क्या होता है? ओके, दिस इज अनदर टाइप. देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स. ओके, तो मे बी आई विल मेक सम वीडियो ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स, ओके, विच विल गिव यू एन आइडिया. तो शूटिंग स्टार होता है कि when you have a very long upper shadow and relatively small lower shadow and a small body, तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार. और अगर अप ट्रेंड में ये हमको ये दिखता है शूटिंग स्टार या डोजी, तो दिस सिग्निफाइज अ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड. मतलब यहाँ से ये स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब वो नीचे जा सकता है. सो दिस वॉज द रीज़न दैट यहाँ पे मैंने सेल कर दिया 262 पे. पहले हाफ शेयर्स मतलब 50% शेयर्स सेल किए और 277 पे बाकी के शेयर्स भी सेल कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक डोजी और शूटिंग स्टार का कॉम्बिनेशन बन रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी जो है, दिस इज़ अ रेड वॉल्यूम विच इंडिकेट्स हाई सेलिंग प्रेशर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो आई विल सी फॉर PFC. ठीक है, I don't have any holdings, so I will just select realize profit and loss. Okay, date range I have to select from, let's say I select from 1st April. Okay, मैंने लास्ट 2 मंथ्स में ट्रेड किया है PFC में. ओके, सो यू सी 14% इन जस्ट 2 मंथ्स. ओके, सो अराउंड 6.47K का प्रॉफिट. ओके, एंड ओके, डिसेंट प्रॉफिट. देन देखते हैं कि जो अब दूसरा स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, उसमें क्या कहानी है. ठीक है, तो उसको भी देखते हैं. पहले ट्रेड बुक में देखते हैं, फिर आई विल शो यू माई प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, तो इसको मैंने बाई किया सबसे पहले 81 रुपीज़ पे. नाउ PFC में मुझे थोड़ा लेट हो गया. ओके, थोड़ा लेट में मैंने बाई किया जब ये ऑलरेडी इस रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर आ गया था. बट ट्रिल में अगर आप देखो कि 11 शेयर्स मैंने लिए 81 रुपीज़ पे. ओके, तो 81 ये रेजोल्यूशन पॉइंट है और जस्ट एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट मैंने लिया था. अगेन यहाँ पे सेम चीज़ देखी कि 15 साल का कब ब्रेकआउट हो रहा है. ओके, एंड RSI इज़ ऑल्सो अबव 60. बाइंग वॉल्यूम इज़ ऑल्सो डिसेंट. सो 11 शेयर्स लिए पहले, एंड जैसे जैसे फिर वो स्टॉक ऊपर गया, अगेन मैंने 50 शेयर्स इस प्राइस पे लिए. ओके, सो 50 + 17 + 56. ओके, सो अराउंड 113 शेयर्स लिए 99 रुपीज़ पे. राइट, एंड फिर इसको सेल किया. 50% मैंने सेल कर दिया 159 पे, एंड 50% आई एम स्टिल होल्डिंग. ओके, तो 159 पे क्यों सेल किया, लेट्स सी. अभी ये 171 पे. ठीक है, तो आई कुड हैव हेल्ड दैट ऑल्सो, बट ठीक है. अभी 154 पे आप देखो. अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो व्हाट वाज द प्राइस एक्चुअली वेयर आई सोल्ड, इट वाज 159. राइट, तो 159 या ये प्राइस था 159. यहाँ पे आप देखो कि ये थोड़ा सा 2-3 रेड कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे आई सोल्ड 50% ऑफ माई शेयर्स एंड आई एम स्टिल होल्डिंग 50%. ओके, तो इसका अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो लेट्स सेलेक्ट कंबाइंड. सो दिस वाज द रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो मैंने बेच दिया उस पर इतना प्रॉफिट हुआ. ओके, 4.97K. और अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस ये अभी मेरा करंट होल्डिंग्स पे प्रॉफिट है. ओके, सो 5240 इज द अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, 80 शेयर्स है मेरे पास, ये बाइंग एवरेज है और अभी सेल नहीं किया है. सो यू सी 65% रिटर्न इन जस्ट 2 मंथ्स. ओके, कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी. मतलब अगर आपने 5 कप्स आइडेंटिफाई किए और एक भी आपको इतना रिटर्न देता है, ओके, 60 to 70%, इवन दो बाकी ट्रेड्स में आपको लॉस भी होता है, बट यू हैव द स्टॉप लॉस, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% का लॉस होगा. बट इवन एक स्टॉक भी अगर आपको 65-70% रिटर्न देता है, तो यू कैन इमेजिन कि
कितना पैसा आप बना सकते हो इस सिंपल स्ट्रैटेजी से, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि अभी दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट, अभी हो सकता है ये और ऊपर जाए, ओके। एंड देर इज़ नो साइन ऑफ बेरिशनेस इन द स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस, इट इज़ गोइंग इन अप ट्रेंड, ओके। तो फर्दर ऑल्सो आई विल मेक वीडियोज़ वंस आई सेल ऑल दिस क्वान्टिटीज़, सो आई विल शो यू कि कितना अल्टीमेट प्रॉफिट बना इसमें, बट it is still in uptrend, okay, and it can even give more returns in the coming few months, okay. So that was all about the cup strategy. I hope you learned something out of it, and just let me go through this presentation, okay. and यहाँ पे हम लोग कुछ stocks देखेंगे और कुछ cups देखेंगे, okay, maybe on monthly टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है, एंड दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया हाउ टू यूज दिस स्ट्रैटेजी, ओके। सो लेट मी स्टार्ट द स्लाइड शो। सो ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ओके। ये हैंडल कई जगह आपको रेलेवेंट नहीं दिखेगा, ओके, बट मेनली यू हैव टू ऑब्जर्व दिस कप, दिस यू शेप्ड, ओके। एंड ब्रेकआउट के टाइम आपको क्या चेक करना है, हाई वॉल्यूम एंड RSI भी चेक करना है, ओके। Okay, now let's see some of the few cup breakouts and कितना रिटर्न उन्होंने दिया, okay. So one is this Jackson Pal Pharmaceuticals, ये सेक्टर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रेजोल्यूशन पॉइंट है जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, एंड सी द रिटर्न। अब इसका आप पैटर्न देखो, 1999 से लेके 2021, कितना साल हो गया, 22 साल का कप ब्रेकआउट। एंड व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट। तो अभी हमने पहले ट्रांसफॉर्मर्स का चार्ट देखा, PFC का चार्ट देखा, उसमें 12 साल का कप था, 15 साल का कप था, बट यहाँ आप देखो 22 साल का कप, और 22 साल का कप ब्रेकआउट जब होता है, सी द रिटर्न 421% रिटर्न, ओके। यहाँ तक ये गया तो ये पूरा जो रिटर्न है 421%, 97 से लेके इट टच्ड ऑलमोस्ट 500, ओके। सो जस्ट इमेजिन how much money you can make if you make the full use of this cup strategy, ठीक है। और यहाँ पे आप अगेन देखो वॉल्यूम, सी द वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। ये वॉल्यूम देख के ही आपको कन्विक्शन हो जाएगा कि इट इज़ गोइंग टू गिव ह्यूज रिटर्न्स, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे इस कैंडल पे बाई करना है और इसके नीचे 2% या प्रीवियस कैंडल पे स्टॉप लॉस लेना है। तो इवन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका लॉस कितना है, मे बी 2%, 5%, एंड व्हाट इज़ द रिटर्न यू आर गेटिंग, सी द रिटर्न। नाउ ऑब्वियसली जरूरी नहीं आपको पूरा 421% रिटर्न मिल जाए, ओके। सो नो वन कैन प्रिडिक्ट द टॉप कि यहाँ पे टॉप लगा, बट इवन अगर आपने यहाँ टॉप लगने के बाद आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और इवन आपने यहाँ पे भी बेचा, इस लेवल पे 2 रेड कैंडल्स बनी, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, स्टिल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, एक शेयर पे यू आर गेटिंग 97 से 430, ओके, अराउंड 300 प्लस रुपीज़ ऑन अ सिंगल शेयर, ओके। सो दैट इज़ इनसेन, राइट। सो वॉल्यूम इज़ वेरी गुड एंड RSI भी 60 के ऊपर है, दैट इज़ अ गुड साइन, बट वॉल्यूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा तो यू कांट एक्सपेक्ट दिस अमाउंट ऑफ रिटर्न, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टॉक। सो कमिंस इंडिया, सेक्टर इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंडर है ये कंपनी। सो अगेन आप यहाँ पे देखो, ये 2015 के बाद 2023। अब यहाँ पे द ड्यूरेशन ऑफ दिस कप इज़ रिलेटिवली लेस। पीछे हमने देखा था जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स में 22 साल का कप था, तो रिटर्न इज़ ऑल्सो ह्यूज, बट यहाँ पे द ड्यूरेशन इज़ रिलेटिवली स्मॉल, सिर्फ 8 साल का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे यू आर गेटिंग कंपेरेटिवली लेस रिटर्न 58%, ठीक है। तो दैट्स वाई आई सेड रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट एंड मोर रिटर्न्स यू विल गेट, ओके। सो जैसे आपके पास डिसीजन लेना है, ओके, मुझे इसमें पैसा लगाना है या इसमें लगाना है। सो जस्ट बाई सीइंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस फेज, द कंसोलिडेशन फेज यू कैन से, यू कैन जज कि जैक्सन में पैसा लगाना दैट इज़ मोर वाइज, ओके, एंड दैट कैन गिव यू मोर रिटर्न्स, ओके, एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 साल का कप है,
बट यहाँ पे देर इज अ ब्रेकआउट आफ्टर 22 years. ओके, सो लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट. इसके बाद एलिकॉन इंजीनियरिंग, अगेन आप यहाँ पे देखो 2008 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया 2022 में, 14 साल का कप एंड 186% रिटर्न. ओके, एंड यहाँ ब्रेकआउट के टाइम सी द ह्यूज वॉल्यूम. ओके, देन हिल्टन मेटल फोर्जिंग, अगेन 116% रिटर्न, ये भी करीब 14-15 साल का ब्रेकआउट है, राइट. एंड देर इज़ अनदर स्टॉक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड. ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन पॉइंट 644. अब ऐसा नहीं है कि कप स्ट्रैटेजी में आपको 100% गारंटी है कि रिटर्न मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, देर इज़ नो रूल कि ऐसा ही होगा. ओके, सो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे आप देखो कि कब ब्रेकआउट हुआ, बट ये दिस इज़ फॉल्स ब्रेकआउट क्योंकि ये नीचे आ गया. तो कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट. सो लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यू विल ओनली मेक प्रॉफिट्स, बट द मेन एम ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बी टू मेक नेट प्रॉफिट्स. जैसे आपने अगर 5 कप्स लिए, आपको आपका हिट रेशियो 50% भी है, लेट से आपको 2 में प्रॉफिट हो रहा है, 2 या 3 में लॉस हो रहा है, बट दैट प्रॉफिट शुड बी रिलेटिवली मोर देन द लॉस, सो दैट नेट में आप प्रॉफिट में रहो. ठीक है, सो दैट्स वाई पुटिंग स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका डिसीजन गलत भी हुआ तो यू विल बेयर अ वेरी स्मॉल लॉस. ठीक है, एंड दैट इज़ मैनेजेबल. ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इफ़ यू सी यहाँ से यहाँ जो प्राइस है ये ऊपर जा रहा है, बट RSI नीचे जा रहा है. सो आई टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, वो यही है. तो इवन आप अगर इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक साइन मिल गया कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ डाइवर्जेंस. क्योंकि RSI नीचे जा रहा है मतलब आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, बट उसकी स्पीड कम हो रही है. तो इसका क्या मतलब कि गाड़ी अब यू टर्न मार सकती है या गाड़ी रुकने वाली है. ठीक है, और वही हुआ. यू सी यहाँ से जाके इसने एक यू टर्न मारा और इसने ये लेवल को तोड़ दिया. ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है रेजोल्यूशन पॉइंट, और अगर इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया देन यू शुड एग्जिट इमीडिएटली, चाहे कुछ भी हो जाए. यहाँ पे आपको अपनी पूरी 100% पोजीशन एग्जिट कर देनी है, अदरवाइज यू कैन बी इन बिग ट्रबल. ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम भी नहीं है, वेरी लेस वॉल्यूम, तो इससे भी आई डोंट गेट दैट कन्विक्शन. ठीक है, तो वाई टू गो विद दिस स्टॉक. आपको बहुत सारे कप्स मिलेंगे, इवन इफ़ यू ट्रैक द करेंट मार्केट, आपको बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे कप ब्रेकआउट्स जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या हो चुके हैं आपको दिखेंगे. तो जस्ट गो विद द स्टॉक जहाँ पे आपको कन्विक्शन हो. ओके, जहाँ पे फर्स्ट थिंग ड्यूरेशन शुड बी लॉन्ग इनफ, मतलब 10 से 12 साल का कप है, दैट शुड बी गुड. ओके, एंड इफ द ड्यूरेशन इज़ मोर दैट इज़ इवन गुड, इवन बेटर. उसके बाद ब्रेकआउट के टाइम हाई वॉल्यूम होना चाहिए. अगर हाई वॉल्यूम नहीं है देन अगेन दिस इज़ अ कंसर्न. RSI ऑल्सो अबव 60. ओके, सो यहाँ पे आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखता है. सो यहाँ पे हमारा कप फेल हो गया, राइट. जुपिटर वैगन्स अगेन 2011 के बाद 2023 में अगेन इसने इस लेवल को टच किया एंड इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया. सो 189% एंड सी द वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे इट हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न. ठीक है, सो आई होप यू कैन मेक अ पैटर्न आउट ऑफ दिस. ठीक है, अगेन दिस वन इज़ अंडर हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. सो अगेन यहाँ पे 2015 से 2023 अगेन दिस इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो 52% रिटर्न. नाउ ये अभी ब्रेकआउट दिया है, राइट, 2023 में. तो दिस इज़ नॉट द यू कैन से मैक्सिमम रिटर्न, फ्यूचर में इट कैन गो फर्दर अप. ओके, सो दिस इज़ द रिटर्न जो अभी तक मिला है 52% एंड इट इज़ ऑन गोइंग. ओके, सो अभी यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, बट दैट इज़ फाइन. ओके, वॉल्यूम इज़ ऑल्सो गुड एंड RSI इज़ ऑल्सो अबव 60, सो इट कैन कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड. ठीक है, इसके बाद टाटा स्टील में आप देखो 81% रिटर्न, अगेन कब ब्रेकआउट 2007 से लेके 2020 तक, 13 ईयर्स का ब्रेकआउट. सी दिस स्टॉक टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड 2009 से लेके 2023, यहाँ पे इट हैज़ गिवन 355% रिटर्न. इवन दो आपको वॉल्यूम उतना नहीं दिखेगा, बट स्टिल सी द रिटर्न, 355% रिटर्न. सो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस कप ब्रेकआउट. एक बार अगर ये कप ब्रेकआउट हुआ और ये सस्टेन करता है तो इट कैन गिव यू इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है,
Yeah, so that was all about this video, and see you guys in the next video. Till then, hit like, comment on the video, and share it with your friends and family. Okay, so see you guys in the next video. Till then, happy investing.